So we still have some participants coming, but I guess since it's time, so we should start today's session. So good evening, dear parents and all our teachers, our dear students. We are very happy to have you with us here today. Good evening to everyone. As you all know, you must have seen that yesterday, 1st of July, was National Doctors Day. That is celebrated in our country every 1st of July. So this 1st of July is definitely special for all of us because as we know what is happening around the world, the current COVID-19 situation, इससे हमारे देश में नहीं सब जगह काफी प्रॉब्लम्स हैं पिछले 2-2.5 महीने से सब ने बहुत तकलीफें झेली हैं बहुत प्रॉब्लम झेली हैं और इस प्रॉब्लम में सबसे आगे रहे हैं हमारे डॉक्टर्स हमारे नर्सेस हमारे मेडिकल स्टाफ हॉस्पिटल के स्टाफ एंड उन्होंने बिना किसी चीज की परवाह किए हेल्थ फैमिली दे हैव बीन एट द फोरफ्रंट एंड वो लोग हमें इस इस पैंडेमिक में इस महामारी में आगे रह के उन्होंने ये दिखाया है कि डॉक्टर्स आर डेफिनेटली देयर टू सेव आवर लाइव्स सो इसीलिए द स्कूल मैनेजमेंट डिसाइडेड कि क्या इस टाइम पे हम हमारे जो पेरेंट्स हैं उनमें जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ एक सेशन कर सकते हैं हमारे बाकी पेरेंट्स के लिए क्योंकि इस करंट सिचुएशन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि ये करो वो करो ये मत करो किस पे भरोसा करें किस पे किस चीज को हम एज अ स्पेसिफिक लें कि हाँ ये कर सकते हैं तो बहुत डाउट्स रहते हैं तो इसीलिए टुडे विद अस वी हैव डॉक्टर प्रजक्ता कोकाटे मैम and we thank you ma'am for being here with us today and ma'am जो है she's a practicing gynec for the past 8 years and ma'am is also a CGO has done a CGO certified course in obstetrics and gynec and masters in public health from Nasik University and ma'am has also done an EMS certification emergency medical services from Apollo so ma'am also works in ICUs so ma'am ने काफी क्लोज से ICUs में पेशेंट्स के साथ वर्क किया है एंड शी नोज कि फ्रंट लाइन पे काम करना कैसा होता है सो वी आर वेरी हैप्पी मैम थैंक यू फॉर बीइंग विद अस हियर एंड बिफोर we start I would like you ma'am to give a brief introduction about yourself कि in short कि आप क्यों you have chosen this field and what is that you like about it for our parents and our teachers. First of all, sir, I would like to thank Director, sir, Principal, ma'am, and Administrator Victor, sir, for giving me this platform where I can share some useful thoughts with you all. And secondly, I should start with introducing myself. Myself, Dr. Prajakta Kokate. I've done BMS from Nasik University, Maharashtra. And we are residing in Indore from last 9 years. So I'm practicing from my clinic, Urja Clinic. It's on Dhar Road. The main reason behind coming to this field is my father's wish. Actually, this is again a very good example for your class 12 students because I have worked so hard to get admission in MBBS and after that I won't able to pass that thing entrance and I got some few marks in means in that exam and I was not eligible for MBBS, but I was eligible for pharmacy, dental colleges, but my father still prefers Ayurveda. Means actually he's not with me now. He passed away in 1995, but still I think that he and his blessings are there with me. That's why this is the first and foremost thing that my parents want me to do this. Secondly, you just need to focus on your what we say internal self to accomplish what we want to
accomplish. Yeah. So this is the knowledge which can be used in your family and for society also. So that is the main reason behind coming to Ayurveda. And that's all. And बस और तो कोई ऐसा सच ये नहीं है बिग इशू कि क्यों डॉक्टर बने एंड क्या बहुत ज्यादा ये होता है सोसाइटी में कि डॉक्टर्स ऐसे वैसे तो डॉक्टर बनना चाहिए. My brother and my sister, they also are doctors. My brother is anesthetist and my sister is a gynecologist. They are working right now in Dubai. Yeah. Saudi German hospital. Nice, Yeah. nice. Great, ma'am. So it's nice to have you with us. So, ma'am, many questions are there, but I'll start with the most important. We all are parents, and we all since are from school. So our first priority हमेशा से it's children, बच्चे. तो हमारे बच्चे हैं, उनको कैसे सेफ रखना है, क्या करना है. So first मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस करंट सिचुएशन में अभी 2 महीने के ऊपर हो गए, हम सब घर पे थे, लॉकडाउन में थे. बड़े लोग तो फिर भी अब काम के सिलसिले में थोड़ा बाहर निकलने लगे हैं, बट बच्चे अभी भी मोस्टली घर में हैं. तो ऐसे टाइम में अगर क्या इज इट सेफ कि हम बच्चों को भले कहीं दूर नहीं, हमारे घर के बाहर भेज सकते हैं, बाहर ला सकते हैं, और अगर ऐसे बाहर हम वॉक पे ले जाते हैं या बाहर गार्डन में ले जाते हैं, तो हमें क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए स्पेसिफिकली फॉर आवर चिल्ड्रन, हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे तो इट विल बी वेरी यूजफुल. ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ आपने जो कहा बात वो बिल्कुल सही है कि बच्चे घर पे बैठ के बिल्कुल घबरा गए हैं कि कब हमें हमारे फ्रेंड्स से मिलना होगा एंड ऑल दैट. इसकी वजह से दे आर साइकोलॉजिकली हैम्पर्ड राइट नाउ. सो अपने को वो भी नहीं होने देना है कि बिल्कुल हैम्पर हो रहे हैं. अगर उनकी थोड़ी बहुत डिमांड है कि आसपास के एरिया में कहीं उनको जाना है विथ मेंटेनिंग एंड टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस. भी बच्चे हैं तो कभी सुनते हैं, कभी सुनते नहीं है, कभी कहीं टच कर लिया, तो पेरेंट्स शुड गिव अटेंशन टुवर्ड्स देम. ऐसे नहीं कि हम लोग जा रहे हैं मोबाइल पे बात और बच्चे को छोड़ दिया है और बच्चा इधर उधर फिर हाथ लगा रहा है, तो दैट वुड नॉट बी ओके. सो एक वो थिंग है. सेकेंडली ज्यादा देर तक नहीं करना है. जैसे हाफ एन आवर इट्स ओके विथ फ्रेश एयर एटमॉस्फेयर. मीन्स जहाँ फ्रेश एयर हो, फ्रेश सनलाइट आ रहा हो, या फिर जहाँ प्रॉब्लम नहीं हो, जहाँ भीड़ भाड़ का जो ये आता है प्रॉब्लम वो नहीं हो, तो अदरवाइज वी कैन टेक देम आउट थोड़ी देर के लिए. और बाकी तो प्रिकॉशंस तो सबको पता ही है कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजिंग, एंड उनका जो भी खेलने का जो मटेरियल आप बाहर लेके जाओगे वो आते वक्त आपको धो के आना है. आने के बाद कंपलसरी उनको बात करवाना, उनको बोलना कि आप नहा लो, और बिल्कुल ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो ही आप उनको ये कर सकते हैं. तो वही है कि अगर हम बाहर से आते हैं तो बच्चों के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल कि दे टेक अ बाथ एंड उसके बाद एग्जैक्टली, चेंज द क्योंकि ड्रेस. वो कहाँ पे टच होंगे वो उनको खुद को नहीं पता है. करेक्ट, बिकॉज करेक्ट, बिकॉज कभी उनके कपड़ों को टच हो सकता है, कभी किसी चीज को उन्होंने टच कर लिया, तो दैट वुड बी मोर हार्मफुल फॉर देम. ये राइट, करेक्ट. राइट. तो ये 2-3 चीजें वी हैव टू कीप इन माइंड कि हम बाहर से अगर आते हैं, पास से भी आते हैं, सामने के रोड से भी आते हैं, बिल्डिंग के नीचे से भी आते हैं, तो इट इज बेटर कि हम बच्चों को उसी वक्त नहलाएं एंड चेंज देयर ड्रेस ताकि दे आर सेफ, हमारे लिए वो सेफ है. दैट इज फाइन. एंड मैम एक और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है, ये तो हम सबके लिए है, बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी. एक बहुत कंफ्यूजन है कि जो मास्क है, क्योंकि पहले जैसे ही ये पैंडेमिक फैला तो काफी मास्क की भी कमी थी, एंड अभी भी काफी कंफ्यूजन है. लोग कभी N95 लेते हैं तो कोई महंगा वाला मास्क ले रहा है, कोई दूसरा टाइप का मास्क ले रहा है, कुछ लोग ऐसे ही कुछ कपड़ा ओढ़ ले रहे हैं. तो एक्चुअली में रेकमेंडेड, आप लोग डॉक्टर्स हैं, आप हॉस्पिटल्स में रहते हैं, आपका एक अलग नजरिया है, बट नॉर्मल जो लोग हैं जो घर पे हैं या सिर्फ पास जा रहे हैं, शॉप पे जा रहे हैं, अपने ऑफिस जाके आ रहे हैं, तो हमें बेसिकली किस टाइप का मास्क पहनना चाहिए, इसके पीछे का साइंस क्या है?
बेसिकली साइंस ये है कि जो कोरोना वायरस जो बैक्टीरिया है वो नैनो पार्टिकल्स में आता है, दैट इज इन नैनो पार्टिकल्स। तो जब भी आप कपड़ा या कोई ऐसे सिंपल सी चीज यूज करते हो तो उसके अंदर से छन के वो आपके नाक तक पहुंच सकता है। तो आपको इस प्रिकॉशंस के साथ जाना है कि डबल लेयर्ड हो, कपड़ा भी हो तो वो भी डबल लेयर्ड हो। और आई वोंट प्रेफर गमछा और रुमाल, एनीथिंग लाइक दैट, वो नहीं करना है। प्रॉपर आप कपड़े का मास्क यूज कर सकते हो जो डबल लेयर्ड है, सर्जिकल जो रीयूजेबल है, सॉरी जो ये है डिस्पोजेबल है, वो मास्क आप यूज कर सकते हो। बट मास्क इज कंपल्सरी आई थिंक, बिकॉज गमछा फिर वो लोग यहाँ पे ले लेते हैं, मास्क इधर कहीं टांग देते हैं, एंड वो दिस स्टफ आर मोर मोर डेंजरस। थोड़ा सा रिस्की एंड डेंजरस। मींस वो प्रॉब्लम हो सकती है उसमें कि अपन छू लेते हैं उस चीज को करेक्ट एंड करेक्ट इन्फेक्शन ज्यादा कैच कर सकते हैं। करेक्ट And करेक्ट। N95 is mask is for that one who is currently in exposure with COVID patient, किसी के घर में कोविड पेशेंट है या फिर कोई जा रहा है मिलने के लिए हॉस्पिटल में, जो सामने कोविड पेशेंट बिल्कुल स्नीज ही कर रहा है, तो उनको माइक्रो नैनो टेक्नोलॉजी वाला 95 मास्क होता है, वो जरूरी रहता है विद फेस शील्ड एंड ऑल दैट, तो वो जरूरी वहां पे है। बाकी यूजुअली आप डबल जो कपड़े का मास्क है जो बारीक धागे से बना हुआ हो वो ले सकते हो आप। फाइन फाइन। सो बेसिकली नॉर्मल मास्क भी चलेगा, बट मिनिमम ये है कि डबल लेयर का मास्क हो। एंड हम कभी दुपट्टा लगा लेते हैं या रुमाल लगा लेते हैं, तो वो हम यूज ना करें। सो डबल लेयर्ड होना चाहिए, करेक्ट, राइट, क्योंकि दैट इज हवा फाइन। में भी 13 मिनट तक ये पार्टिकल रहता है। ओके, सराउंडिंग में 13 मिनट तक ये पार्टिकल रहते हैं। फाइन फाइन। तो इट इज बेस्ट कि हम लोग एक नॉर्मल डबल लेयर का, जो डबल लेयर मास्क है उसी को हम सर्जिकल मास्क भी बोलते हैं शायद। नहीं, सर्जिकल मास्क मींस वो जो डिस्पोजेबल होता है, ब्लू कलर का जो आता है, जो यूजुअली डॉक्टर सर्जरी के टाइम पहनते थे अभी तक के। तो ओके जो डिस्पोजेबल जो 8 आवर्स उसका पीरियड रहता है, 8 आवर्स उसको अपन पहन के उसको डिस्पोज करना रहता है, वो वाला सर्जिकल मास्क रहता है। फाइन फाइन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम दुपट्टा या रुमाल या गमछा ये अवॉइड करें अगर कहीं बाहर जाए तो, स्पेशली बच्चों को ले जाए तो, और उनको मास्क ही पहनाए, और वो भी डबल लेयर। जरूरी नहीं है कि N95 ही लें, बट डबल लेयर मास्क हो तो वो ज्यादा बेटर है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपने बताई कि मेक श्योर कि हम बाहर की चीजें टच नहीं करें, मतलब बाहर जाएं तो किसी भी अनवांटेड चीज को टच ना करें। सो दैट इज फाइन, दैट इज राइट। एंड मैम, मैं आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स एंड टीचर्स भी जो हैं, इफ यू हैव एनी डाउट्स आप लोग मैसेज कर सकते हैं। वी आर गेटिंग सम क्वेश्चंस, सो वी कैन आस्क योर क्वेश्चंस आल्सो टू मैम। तो मैम उनका भी जवाब दे देंगे, तो इट इज, तो वो भी एक अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग बोल नहीं पाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे मैसेज कर दीजिए, विल गेट योर क्वेश्चंस and मैं directly I'll ask ma'am and ma'am will answer them. So ma'am, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी क्योंकि सभी बच्चे घर पे हैं, तो स्पेशली मम्मी लोग के लिए मेन प्रॉब्लम है खाना, क्योंकि अब तीनों टाइम बनाना है और अलग अलग बनाना है। अभी क्या बनाएंगे बार बार समझ में नहीं आता है, तो अब बाहर से मंगा नहीं सकते हैं, डिलीवरीज बंद हो चुकी हैं, बट अभी चालू हुई है, बट आई थिंक कि हमें अभी नहीं मंगाना चाहिए। अब तो मैम मेनली ये सब अभी नहीं मैसेजेस मंगाना भी बहुत आते चाहिए, हैं सही। कि क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, ये इम्यूनिटी बढ़ाना। ये इम्यूनिटी के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है खासकर बच्चों में, और घर का क्या बना हुआ खाना हम या ड्राई फ्रूट्स टाइप ऐसी कुछ चीजें जो हम बच्चों को डेली खिलाएं जो उनके हेल्थ के लिए अच्छा हो। इम्यूनिटी का आप अगर मुझसे पूछेंगे तो आई वुड प्रेफर डाइट एज वेल एज एक्सरसाइज, हाइजीन एंड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मींस वाटर इनटेक उतना ही जरूरी है जितना आपका डाइट जरूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए खास करके 1.5 से 2 लीटर तक का पानी डेली जाना ही चाहिए उनके पेट में, तो वो प्रॉपर हाइड्रेटेड रहेंगे और उस टाइम पे इम्यूनिटी जो है वो बढ़ने का काम होता है। सेकेंडली एक्सरसाइज भी पार्ट है, दैट मीन्स आपने तो बता ही दिया है, योगा और योगा सेशन आपका लास्ट टाइम हुआ था, दैट वाज वंडरफुल।
और ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल वॉकिंग एक्सरसाइज हो गया, घर के अंदर ही वॉक ले ली आपने, कि ज्यादा देर तक सिटिंग हो रहा है, बच्चा टीवी देख रहा है या फिर बच्चा कंटिन्यू मोबाइल और लैपटॉप पे लगा हुआ है, स्कूल के क्लासेस होते हैं उसके बाद भी बच्चे आजकल आप देखो टैबलेट और मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो दैट इज नॉट ओके। उनको बीच बीच में बोलना है कि यू शुड एक्सरसाइज, एंड एक्सरसाइज वुड बी इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग लाइक डांस, एरोबिक्स हो गया, या फिर योगा जो आपने वीडियो शेयर राइट। किए थे, तो वो हो सकता है। सेकेंडली डाइट इज द, अगेन योर क्वेश्चन वाज दैट कि डाइट कैसा होना चाहिए, तो मोस्टली हाई प्रोटीन डाइट इज वेरी नेसेसरी बच्चों के लिए। प्रोटीन, स्प्राउट्स, जो भी, इवन अगर इफ यू टेक नॉनवेज देन चिकन एंड एग्स आर ओके, एंड आफ्टर टेकिंग प्रिकॉशंस मीन्स, वो तो ऑब्वियस है कि आपको उसको उबालना है और प्रॉपर उसको प्रॉपर वॉश करना है। इवन वेजिटेबल्स उसको भी अच्छे से वॉश करना है, सोडा बाइकार्ब में आप वॉश कर सकते हो या हल्दी में वॉश कर सकते हो। एंड सेकेंडली आपको प्रोटीन इंटेक बच्चों का देखना है। कार्बोहाइड्रेट इंटेक जितना जरूरी है उतना ही प्रोटीन इंटेक बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। Secondly, milk is again a good thing for child with turmeric, little bit of turmeric in it. तो और भी है, और कुछ आयुर्वेदिक भी है, जैसे कि सितोप्लादी चूर्ण है, आप हनी के साथ उसको दे दो, या फिर अदरक, आप प्लेन अदरक थोड़ा उसको पील के आप उसको हनी में मिला के उसको 2 बार बच्चों को खिला दो अगर सुबह शाम, तो वो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर देयर मींस इम्यूनिटी। फाइन मैम, ये आपने कुछ 2-3 सजेशंस अच्छे दिए हैं, एंड इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी थे। एक क्वेश्चन आया है कि वार्म वाटर पीने को बोलते हैं हम, गर्म कुनकुना पानी पीना चाहिए, तो क्वेश्चन है कि कितना पीना चाहिए, कितने ग्लास पीना चाहिए? कुछ इसमें कोई बोलता है सुबह शाम पियो, कोई बोलता है दिन में 5-6 ग्लास पियो, तो देखिए एक्चुअली ये क्या तो बच्चों को भी पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए? बच्चों को पीना चाहिए, लेकिन उनको बहुत ज्यादा फोर्स मत करिए कि बहुत ज्यादा हॉट वाटर पिए। वो नॉर्मल आप दिन में 2 बार अगर उनको छोटा छोटा ग्लास भर के पानी दे सकते हो तो दे दीजिए। अदरवाइज अगर वो कोई मीन्स ऐसे कुछ मिला के देना है या बहुत हर मील के बाद देना है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। उनके हिसाब से आपको देना है कि वो ले रहे हो उतना। डोंट मेक देम फील लाइक कि कुछ और चल रहा है या लाइफ कुछ बदल गई है कि ये अपने को खाना है, ये नहीं खाना है, और ये बस ये है कि बाहर का खाना को अवॉइड करने को बोलना है। अदरवाइज आप जो नॉर्मल उनको खाना देते हो, घर का दाल चावल रोटी सब्जी, वो पूरा खाना आप दे सकते हो। एंड 2 ग्लास ऑफ वाटर इज इनफ, हॉट वाटर जो आप बोल रहे हो। विथ लेमन अगर होगा तो और भी ओके है, क्योंकि ओके। लेमन इम्प्रूव्स, अगेन विटामिन सी इम्प्रूव्स इम्यूनिटी। राइट। तो विथ लेमन राइट। अगर आप दे सको थोड़ा सा डाल के, कुछ बच्चे अवॉइड करते हैं लेमन का, खट्टा नहीं चाहिए या ये, तो आप नॉर्मल भी गर्म पानी दे सकते हो। फाइन, ये दिस इज फाइन। एंड मैम, ये आपने मोबाइल और टैबलेट्स का बात किया था, तो एक क्वेश्चन पहले आया था, अभी वापस भी है, कि यही उनका भी यही कहना है कि बिकॉज चिल्ड्रन आर एट होम 24 आवर्स अभी, सो ये ज्यादा हो रहा है, तो ये हाँ। कितना हम कर सकते हैं? दूसरा, पेरेंट्स अभी बाहर जाने लगे हैं, दे हैव स्टार्टेड गोइंग फॉर वर्क आउटसाइड, तो मोबाइल सैनिटाइज करना, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। ये मोबाइल सैनिटाइज करना जरूरी है, और अगर है तो उसको कैसे सैनिटाइज करें? मोबाइल सैनिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वी टच इट मींस ईच ओकेजन पे आप उसको टच कर रहे हो, तो उसमें ऑब्वियसली वो तो जाना ही है। और आप उसके लिए जस्ट आपका जो सैनिटाइजर है उसको एक कॉटन पे लेके उससे उसको साफ कर सकते हो। ओके, तो डायरेक्ट डायरेक्ट तो मोबाइल पे इट इज वेरी सैनिटाइजर। इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी नेसेसरी आल्सो, क्योंकि आई आल्सो उसको ड्राई कॉटन से फिर से पोंछ के लेना है आपको, तो ओके। ताकि वो उसको वेटनेस ना हो उसमें। ओके। ओके, सो जो मैम वो स्प्रे वाले सैनिटाइजर आते हैं, उसका हम यूज कर सकते हैं क्या? स्प्रे वाले सैनिटाइजर्स का थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो मोबाइल उसमें प्रॉब्लम जा सकती है। और उसमें उतना ज्यादा जो 99.99% जर्म ये करना वो जो रहता है वो नहीं होता है। जो आपका प्रॉपर एक सैनिटाइजर होता है जो एक हार्ड फॉर्म में आता है, दैट वुड बी मोर ओके, दैट वुड बी मोर प्रेफरेबल।
but if you don't have this kind of stuff, then you can use, means ऐसा कुछ नहीं है, but still अगर आपने वो परचेस कर लिया तो ज्यादा अच्छा रहेगा for child safety, you know. फाइन, तो मोबाइल मतलब हमें सैनिटाइज डेली अगर हम बाहर जा रहे हैं तो आके करना, दैट इज अ गुड हैबिट जो हमें अभी डालनी पड़ेगी, सो दैट इज फाइन। वो मोबाइल हो गए, रिमोट हो गए, और जो अपने जो डोर्स है उसके हैंडल्स हो गए, यूजुअली ओके, उसको तो अपने को सैनिटाइज करना ही है, क्योंकि बच्चे यहाँ आसपास तो जाएंगे, खैर ऐसा तो नहीं है कि नीचे नहीं जाएंगे, बट अगर अपार्टमेंट में है तो सामने वाले घर में तो कम से कम जाएंगे ही सही, तो वो सही है, बार बार दरवाजे को हाथ लगाएंगे, तो वहां पे भी एक प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल्स, रिमोट्स और हमारे दरवाजों के हैंडल्स, इसे हम सैनिटाइज करते रहें, तो ये हमारे लिए, बड़े लोगों के लिए, क्योंकि हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, सो इट विल मेक आवर चिल्ड्रन आल्सो सेफ, दैट इज फाइन। एंड मैम, ये एक अभी आजकल ये भी एक बहुत वापस काफी फेमस हो रहा है, काढ़ा जो हमारा है, तो उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ये काढ़ा कैसे बनाना है, कौन सा काढ़ा अच्छा है या क्या है, उसके बारे में आप, चूंकि आप आयुर्वेद आपका मेन स्ट्रीम है, तो उसके बारे में थोड़ा प्लीज इन्फॉर्म अस। या बहुत ज्यादा उसके लिए पैनिक नहीं होना है कि इसी टाइप का काढ़ा चाहिए। यूजुअली यू कैन टेक तुलसी, दालचीनी, जो घर में है, जो घर में चीजें हैं आप उससे बना दीजिए। आपके पास उसमें से एक दो चीजें नहीं भी हो तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स दैट इज गुड फॉर इम्यूनिटी अगेन, बट इट इज नॉट अ प्योर ट्रीटमेंट, नो। हाँ, तो ये भी नहीं कि मैं काढ़ा ले रहा हूँ तो बाकी मैं अभी मैं सब छोड़ दूंगी या मैं कुछ करेक्ट, और ये नहीं करूंगी, ये नहीं चाहिए। तो काढ़े के लिए आप घर में जो सोंठ का पाउडर होता है या मुलेठी होता है, और भी जो काली मिर्च होती है, दालचीनी, वो सब डाल के पानी में उबाल सकते हो, उसको आधा होने तक उसको गर्म करें और उसके बाद उसको छान के रखें। जब जब आपको लगता है कि आप वो ले सकते हो, तो 2 टाइम 3 टाइम आप ले सकते हो उसको। ओके फाइन। तो ये बच्चों को मतलब हम कितने बड़े बच्चों से इसको देना स्टार्ट कर सकते हैं? एक्चुअली 12 साल के बाद ही इसको एडवाइजेबल किया जाता है, बट अगर कभी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्नीजिंग हो रही है या फिर गला उसका थोड़ा सा बैठने का ये है, या फिर कुछ ऐसे जो ठंड लग रही है, ऐसे जो बोलते हैं, उस टाइम पे अपन बच्चों को भी वो प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन इन स्मॉल क्वांटिटी। उनके लिए एक 3 से 4 बड़े चम्मच हो तो दैट इज सफिशिएंट। और मैम, 12 से कम अगर एज के बच्चे अगर नॉर्मल हैं, ठीक है, तो उन्हें देना एडवाइजेबल नहीं है? अगर अगर कुछ भी ये नहीं है तो हॉट वाटर वुड बी ओके फॉर देम। मुझे नहीं लगता कि उनके लिए इतना ज्यादा गर्म चीजों का इस्तेमाल सही रहेगा। बाकी फिर भी टर्मरिक मिल्क एंड ये तो अपन दे ही रहे हैं उनको, तो राइट, अदरवाइज हाँ, अगर वो ले रहे हैं तो इट्स ओके, बट इट इज नॉट एडविजिबल टू टेक 1 फुल ग्लास और पूरा वो एक कटोरी पिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बच्चे यूजुअली आप देखना 1-2 दिन पियेंगे और उसके बाद उनको लगेगा कि ये क्या रोज मम्मी ला के पिला रही है जबरदस्ती। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक होके। जब भी उनको, आपको लगे कि हाँ वो एक्सपोज हो रहे हैं या फिर अगर उनको कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप दे सकते हैं। फाइन। मैम, मैं अभी एक सबको हमारे साथ डॉक्टर मारूफा भी हैं, वो भी हमारे ही पेरेंट हैं, और उनको मैंने कहा था बट उनका अभी ड्यूटी था, फिर भी वो हैं, सो आई रिक्वेस्ट कि वो भी, मैम क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं मैम? आप हाँ अनम्यूट हाँ, कर जी जी जी, डॉक्टर मैं मारूफ, अनम्यूट करती हूँ। डॉक्टर मारूफा, मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप अनम्यूट करेंगे तो आपकी आवाज़ आएगी हमें। आपने अनम्यूट नहीं किया है डॉक्टर, डॉक्टर मारूफा। हाँ जी, आ रही है आपको अब मेरी आवाज? हाँ, राइट राइट, अभी हाँ जी। या योर वॉइस इज क्लियर। सो जी सर। डॉक्टर मारूफा भी हमारे साथ हैं। पहले वो शायद उनका ये ड्यूटी का टाइम है तो वो पहले आ नहीं पाए थे, बट फिर भी शी टुक आउट टाइम, सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस हियर मैम। तो हमने हमारे साथ डॉक्टर प्रजक्ता मैम भी हैं, तो उन्होंने ठीक। अभी तक हमको काफी हेलो गाइड मैम। किया हाँ, हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। है। सो मैं मैम से अभी यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पेरेंट्स से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं आपसे हाँ जी। एक
क्वेश्चन अभी जो आया है, ये आपसे मैं पूछना चाहूंगा। पेरेंट्स ये पूछ रहे हैं कि जैसे मास्क हम पहनते हैं, बाहर जाते हैं मास्क पहनते हैं, टाइम लगता है, तो हमने देखा है कि हम लोग भी शायद ये करते ही हैं, बार बार मास्क को टच करते हैं और थोड़ा उसको निकालते हैं फिर पहनते हैं। तो क्या ये सही है फिर वो, क्योंकि जब जो हमारे हाथ में अगर लगेगा, सो हाउ सेफ इज इट, ये नहीं करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आप मास्क पहनते हैं, मास्क अपनों ने पहना हुआ है, तो कोशिश ये करना है कि उसे उसमें एक ही साइड से अपन यूज करें मास्क को। जिस साइड से जो साइड बाहर की साइड जो है, उस साइड को अपन बार बार, जैसे किसी किसी की आदत होती है कि बार बार उसको पलटा लेना या फिर कभी इधर से लगाना कभी इस साइड से, तो हमें वो अवॉइड करना है। वो अवॉइड करना जरूरी है, क्योंकि बाहर जो बैक्टीरियाज हैं, जिसके जो सेफ्टी जो अपन कर रहे हैं कि नाक से मुंह को टच ना करें, नाक को टच ना करें, वो तो फिर वो सेफ्टी नहीं हो पाएगी। अगर हम अगर बार बार मास्क को पलटा के लगाएंगे या फिर बार बार उसे टच करेंगे, तो जो सेफ्टी है वो खत्म हो जाएगी। तो उसमें क्या है, उसमें भी पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके कारण से हमें वो अवॉइड करना है। राइट। एंड चूंकि आप अभी हॉस्पिटल्स जाते हैं, क्लिनिक्स जाते हैं, सो आपसे एक क्वेश्चन है कि अभी जैसे कोविड तो चल ही रहा है, वो एक प्रॉब्लम तो दुनिया में हम सबके सामने है, तो लेकिन इसके अलावा नॉर्मल अभी बारिश का टाइम स्टार्ट हो रहा है, एंड ये टाइम ऐसा रहता है कि ऐसे ही जनरली सर्दी खांसी जुकाम सब कुछ ज्यादा होता है। तो ऐसे टाइम पे अगर कभी हमें हमारे क्लिनिक जाना पड़े या डॉक्टर को दिखाना पड़े, हम क्लिनिक जा रहे हैं, तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या और कब जाना चाहिए एक्चुअली? जरा मतलब खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, तो क्या तुरंत जाना चाहिए या हम थोड़ा घर पे कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं? इसके बारे में आप कुछ बताइए। अभी तो बेसिकली ये रूल निकाल दिए गवर्नमेंट ने। अभी जो स्टार्टिंग में हो रहा था वो तो अब उससे थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। अब गवर्नमेंट के ऐसे ऑर्डर्स हैं, मतलब हम लोगों के साथ भी ये है कि अगर हम 3 दिन तक कोई पेशेंट देखते हैं, 3 दिन तक हमने किसी पेशेंट को देखा और उसकी सर्दी खांसी जुकाम ये ठीक नहीं होता है, तो उसे हमें डायरेक्ट फीवर क्लिनिक्स पर शिफ्ट करना है। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर 8 से 10 फीवर क्लिनिक डेवलप कर दिए गए हैं, जहाँ पर हमें पेशेंट को भेजना है। जब भी पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आता है, तो हमें सबसे पहले उसकी स्कैनिंग करना है। स्कैनिंग करके देखना है उसे फीवर अगर कंटिन्यूसली 3 दिन बना रहता है, तो हमें रिस्क नहीं लेना है। उसका जल्दी से चेस्ट एक्सरे करवाना है। चेस्ट एक्सरे करवा के और आगे अगर कोविड टेस्ट है या अगर उन्हें रिक्वायर्ड लगता है कि कोविड टेस्ट करवाना ज़रूरी है, तो वो लोग फिर उन ऐसे पेशेंट्स को वो फीवर क्लिनिक पर ही ट्रीट कर रहे हैं। ओके, तो आप मैम कुछ एक्सक्यूज मी, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यस थोड़ा यस सा। मैम जी। आपने क्वेश्चन पूछा था कि कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास, राइट तो राइट मैं एक्चुअली एक वो ये करूंगी, इंटरप्ट करूंगी मैम को। मैम ने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि वो हमें एक प्रिकॉशन लेने को बोला है। सेकेंडली, जब ब्रेथलेसनेस हो या फिर लॉस ऑफ टेस्ट हो, तो दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ कोविड। तो वहां पे आपको तुरंत डॉक्टर की हेल्प लेनी है। लेना है, अगर आपको ये, हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि नॉर्मल है और ये है, लेकिन आपको टेस्टलेसनेस जो एक कार्डिनल सिम्टम है कोविड का, बिल्कुल टेस्ट या स्मेल नहीं आ रही है किसी चीज की और ब्रेथलेसनेस है, तो उस टाइम पे आपको तुरंत दिखाना है। अदरवाइज यू कैन टेक मेडिसिन एट होम ऑल्सो बाय टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस। लेकिन जैसे मैम ने आपको बताया 3 डेज का प्रिकॉशन, 3 डेज कंटिन्यू आपको फीवर रह रहा है, उसके साथ ये वाली जो सिम्टम्स है वो भी आ रहे हैं, तो आपको तुरंत दिखाना है। राइट, ओके फाइन। सो मेनली है कि टेस्ट नहीं आना, टेस्ट की फीलिंग चले जाना, और अगर सांस लेने में थोड़ी तकलीफ है, करेक्ट, ब्रेथलेसनेस होना, ये इसमें से अगर कुछ एक भी सिम्टम है तो फिर बिना देरी किए वी शुड कंसल्ट आवर डॉक्टर जो भी कंसल्ट करना है। उसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है कि अपन क्या भी 1 दिन 2 दिन रुक जाए या फिर करेक्ट। इस टाइप से कुछ नहीं करना है।
राइट। और मैम आपने बताया अभी कि फीवर सेंटर्स खुले हैं, तो क्या हाँ, आप कुछ फीवर सेंटर्स कोई जगह बता सकते हैं? तो वो एक फीवर अच्छा इन्फॉर्म। सेंटर्स उन्होंने बेसिकली अलग अलग उसमें एरियाज में वो किए हैं, जैसे कि 300 से 400 किलोमीटर्स की दूरी पर अलग अलग एरियाज में उन्होंने डेवलप किए हैं। ओके। तो 10 से 11 पूरे इंदौर में 10 से 11 ऐसे सेंटर उन्होंने डेवलप कर दिए हैं, जो कि मतलब आप वहाँ पर पेशेंट को रेफर कर सकते हैं। और वो उन एरियाज में जितने क्लिनिक आते हैं, जैसे अब हमारा क्लिनिक है मल्हार पलटन में आता है, राजवाड़ा साइड। तो राजवाड़ा साइड उन्होंने एक मल्हार पलटन में वहाँ पर भी उन्होंने एक फीवर क्लिनिक डेवलप किया हुआ है। तो इससे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक के एरिया में जितने भी क्लिनिक्स हैं, अगर वहाँ पर ऐसे कोई पेशेंट आते हैं या कोई ऐसे पेशेंट जुड़ते हैं, तो हम लोगों को उनको सिम्टम्स के आधार पर, जैसे मैडम ने बताया कि अगर कोई ब्रीथलेसनेस है या फिर फीवर की कंटिन्यू हिस्ट्री है पेशेंट की, या फिर उनको कफ कोल्ड है, चाहे वो किसी भी एज का पेशेंट हो, तो हमें उन्हें वहाँ पर ट्रांसफर करना होता है। फाइन। और उन्होंने जो ऐप एक हमें वो दिया है, Find it on Google also. You can अच्छा, Google गूगल पे मिल Google जाएगा। Map it. Yeah, गूगल पे वो Google मिल Map पे जाएगा, आपको पूरा पूरा information मिल उसका वो जाएगा. इंफॉर्मेशन मिल तो जाएगा ये उसका। ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है सबके लिए कि अगर कभी हाँ, अगर जरूरत पड़ती है किसी को, तो गूगल में फीवर सेंटर्स अगर सर्च करेंगे तो आपके नियरेस्ट क्या फीवर सेंटर है आपके एरिया के, वो मिल सकता है आप लोग को। क्योंकि स्टार्टिंग में जो अब ये कोरोना जब स्टार्टिंग जो वो चल रहा था, तब स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आ रही थी। उन्होंने जो छोटे जो क्लिनिक्स थे, जो क्लिनिक्स होते हैं, वो क्लिनिक्स को अलाउ नहीं किया था। हम लोगों को किसी को राइट। पेशेंट देखने के लिए अलाउ नहीं था, उससे पेशेंट और पेशेंट्स हॉस्पिटल्स जा रहे थे, हॉस्पिटल जाने में हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को नहीं ले रहे थे, तो काफी करेक्ट। दिक्कत हो रही थी उससे। बहुत सारे मतलब बहुत लोगों ने बहुत सफर किया है इस चीज को लेकर। राइट। तो अब उन्होंने पिछले 1 महीने से जो ये प्रोटोकॉल जो दिया है, वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उससे बहुत बेटर है, क्योंकि पेशेंट सफर नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई करेक्ट। देखने वाला है। राइट। मतलब हमें भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी नहीं ले रहे हैं, तो पेशेंट कहाँ जाएंगे? करेक्ट। तो तो अभी उसमें ये ना बहुत सारे पेशेंट सफर कर रहे थे। राइट। तो अब ये एक ऑप्शन हम सबके पास है, सो दैट इज फाइन, दैट्स अ गुड थिंग। मैम मैं अभी मैम प्राजक्ता मैम आपसे ये पूछना, वन क्वेश्चन आई हैव। एक क्वेश्चन आया कि अगर बच्चों को बाहर ले जाते हैं तो कौन सा मास्क पहने। आई थिंक ये हम कवर कर चुके हैं, जो डबल लेयर्ड मास्क है बच्चों के लिए भी वही आई थिंक बेटर है। तो कोई अलग से हाँ, मास्क लेने की जरूरत नहीं, डबल लेयर्ड मास्क। बस ये है जैसा कि पहले कहा था कि हम गमछा और हैंकी, दुपट्टा हाँ, वो ये ना उसके पहनाए लिए जैसा बच्चों कि को। मैडम ने बताया कि वो गमछा और दुपट्टा वगैरह या तो अगर वो लगाते भी हैं, तो हर एक, जैसे अब हम लोग डॉक्टर्स हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर्स के वो रूटीन में है, इसलिए राइट। हम लोग वो इजीली कर पाते हैं ना। या फिर कोई मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, वो उस चीज को अच्छे से कर पाएगा। लेकिन राइट। अगर नॉर्मल पर्सन या फिर बच्चों को अगर कहा जाएगा कि आप इसको ऐसे लगाना या सीधा लगाना, इसको हाँ, हाथ वो नहीं नहीं लगाना, होगा। तो वो सबसे पहले वो छुएंगे भी और निकालेंगे भी उस चीज को, करेक्ट, तो उसका वो हो मतलब नहीं नहीं रह पाएगा। जाता फिर। हाँ, करेक्ट है, तो इसलिए मास्क इज बेटर। मास्क इज बेटर। जितना अपन काउंसलिंग कर सकते हैं बच्चों की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन उन्हें समझाएं, इस बारे में बताएं कि बार बार हाथों को सैनिटाइज करना है, हैंड वॉश करना है। बाहर से आते हैं या खेलते हैं, बच्चे खेलने गए हैं और खेल के आए हैं, तो उनको हैंड वॉश करना है, और राइट। उनके कपड़े चेंज करवाना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख इसका के हम ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। इन एंड सब चीजों को वो कर सकते एक और क्वेश्चन आया था अभी, सैनिटाइजर की हम बात कर रहे थे, तो आप दोनों ही से ही मैं पूछूंगा, प्राजक्ता मैम आप भी बता सकते हैं, फारूक मारूफा मैम आप भी, कि ये सैनिटाइजर का एक ये भी आया था कि क्या बार बार सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, एक दिन में कितने बार यूज करना चाहिए, नहीं. इससे स्किन में कुछ प्रॉब्लम होती है हम्म. क्या? इसके बारे में कुछ आप बताइए। देखिए, स्किन में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन बार बार सैनिटाइजर इज अगेन, एवरीवन नोज इट्स अ केमिकल,
तो Yeah. आप केमिकल को अपने लाइफ में एक हद तक ही यूज कर सकते हो. अदरवाइज वॉशिंग योर हैंड विथ सोप इज ऑलवेज प्रेफरेबल, कि जब Okay. भी आप हो सके तो आपका हाथ आप धो लीजिए. और अगर आपके पास बिल्कुल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है या बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि बार बार आपको हैंड वॉश करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो एक आध बार आप बीच में सैनिटाइजर यूज कर सकते हो. और या फिर किसी और चीज को सैनिटाइज करना है घर की, जैसे हाँ. जैसे आपने बताया मोबाइल या रिमोट है, उसको आप सैनिटाइजर का यूज कर सकते हो. अदरवाइज यू शुड वॉश योर हैंड्स, मींस Okay. जितना हो सके उतना वॉश हैंड्स. आई एग्री ना, आई एग्री. जैसा कि मैम ने बताया कि सैनिटाइजर, तो सैनिटाइजर को बार बार यूज करना वो नहीं है, पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हर जगह पे अपन बार बार सैनिटाइजर यूज करने से बेटर ये है कि अपन यूज सोप एंड वाटर, That is वॉश better. फॉर 20 seconds. Okay. तो soap and water is much better compared to sanitizer. तो ये एक important. सैनिटाइजर बस वही उसी जगह पे अपन यूज करें जहाँ पे अपन सोप और वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं. जैसे कि Okay. मैडम ने आपको बताया था पहले कि मोबाइल सैनिटाइज करना Right. है, तो Right. मोबाइल को अपन एक कॉटन में सैनिटाइजर लेकर और मोबाइल अभी जब से ये कोविड-19 का ये वो चल रहा है, तब से ना मोबाइल कवर्स भी अवेलेबल है मार्केट में बाहर. जैसे हाँ. अब हम लोग भी वही यूज कर रहे हैं, मोबाइल कवर्स, जो Right. जिसमें पूरी तरह से मोबाइल को कवर करके और मोबाइल अपन यूज कर सकते हैं. तो उसमें क्या होता है कि मोबाइल का भी खराब होने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि बार बार सैनिटाइजर यूज करने से मोबाइल की स्पीकर और उसमें प्रॉब्लम आ रही है. Correct. तो एक ऑप्शन अपने पास ये भी है कि हम उसको कवर में रख के तो कवर को हम बार बार सैनिटाइज कर सकते हैं. ये Right. बाहर से ये आने के बाद दो अपन दो उसको ऑप्शन यहाँ है सैनिटाइज कर हमारे पास. सकते हैं. हाँ, करेक्ट. कवर भी ले सकते हैं या मोबाइल को भी हम पर लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें अगर हम बाहर जा रहे हैं तो मोबाइल तो सैनिटाइज रोज करें तो वो सैनिटाइज ज्यादा करना है, बेटर है. क्योंकि करेक्ट. वो ज्यादा बेटर है. बच्चों के हिसाब से तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है. बच्चे कभी भी, अब हम भी आते हैं या मम्मी पापा जो भी बाहर जा रहे हैं, बच्चों को कितना भी समझाने के बाद वो लोग नहीं मानते हैं, मोबाइल को हाथ लगाते हैं, नहीं, वो मोबाइल को तो सही बात छूते है. हैं. तो वो तो फिर इसलिए सबसे पहले मोबाइल को सैनिटाइज करना जरूरी है. फाइन. राइट. ये एक इम्पोर्टेंट चीज है. और एक क्वेश्चन उनका नाम नहीं लिखा है, ये भी आया कि गिलोय जूस के बारे में भी काफी कुछ आ रहा है. आई थिंक प्राजक्ता मैम, ये क्या हाँ. ये कितना अच्छा गिलोय है, क्या सत्व या मार्केट हाँ, से हमें खरीदना चाहिए बना हुआ या घर पे बना, इसके बारे में कुछ आप बताइए. आप जो चाहे आप प्रेफर कर सकते हो. गिलोय इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. गुडुची उसको संस्कृत में बोला जाता है, और वो सारे टाइप के फीवर में यूज होता है. तो आप गुड़ची घनवटी करके एक वटी भी आती है, वो डायरेक्ट मार्केट से खरीद सकते हो, या फिर गिलोय आप नॉर्मल यूज कर सकते हो. एंड यू कैन यूज इट नॉर्मली ऑल्सो, मीन्स एक गोली आप सुबह शाम हनी के साथ ये करके पीस करके बच्चों को भी दे सकते हो कम मात्रा में, और आप खुद भी ले सकते हो. वो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट. मीन्स बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि एक जो इम्यूनिटी बूस्टर है वो भी काम करेगा गुडुची, और दूसरा ये कि मीन्स फीवर कम करने में भी उसका तो ये नॉर्मली भी हम ले सकते हैं, जो नॉर्मल ले लोग सकते हैं, मतलब किसी बिल्कुल को ले प्रॉब्लम सकते नहीं हैं. तो गुडुची, डेली ले सकते हैं. हाँ, गुडुची घनवटी ये जो है, तो ये आप डेली सुबह शाम एक गोली ले सकते हो. ओके. तो ये हम मार्केट से खरीद के वी कैन हैव वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द इवनिंग. फाइन. या फिर आपके पास अगर चूर्ण हो या घर पे आपको कुछ ये हो तो आप घर पे भी यूज कर सकते हो, घर हाँ. का. एंड मैम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे मास्क से ही रिलेटेड है. अब हमने मास्क पहना है, हम ऑफिस गए हैं या हम बाहर हैं मार्केट में, कितनी देर पहनना एडवाइजेबल है? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा या अगर आप और उसको नॉन टच टेक्निक से यूज कर रहे हो तो 8 आवर्स तक आप कंटिन्यू एक मास्क यूज कर सकते हो. उसके Okay. बाद आपको अगर वो डिस्पोजेबल है तो डिस्पोज करना है, और अगर वो वॉशेबल है तो अलग से कैरी बैग में दूर से डालना है, उसको क्लोज करके उसको अलग रखना है. एंड यू शुड वेयर अनदर मास्क, क्योंकि वो अपना भी एक ब्रीदिंग पैटर्न होता है, अपना खुद का एक जिसे बैक्टीरियल फ्लोरा होता है इनसाइड आवर माउथ,
तो वो अगर कंटिन्यू आप बंद करके रखोगे माउथ तो वो भी ग्रो करने लगता है। तो Okay. 8 hours इज सफिशिएंट, मींस एक कोई मास्क आप 8 hours पहन सकते हो, तो उसके बाद उसको चेंज करना है। मास्क होने के बाद उसको हम बैग में डालेंगे, कोई एक अलग बैग में, और फिर उसको रीयूज कब कर सकते हैं हम? अगर वो N95 मास्क है, कपड़े का मास्क है, तो उसको अच्छी तरह वॉश करके उसको यूज करना है सोप एंड वाटर से। अगेन गर्म पानी हो तो और भी अच्छा, लेकिन नॉर्मल सोप वाटर से उसको 20 सेकेंड्स तक रगड़ के आपको उसको सुखाना है एंड देन यू कैन रीयूज इट। सो इट इज एडवाइजेबल कि, हाँ जी मैम आप बोलिए। अभी जो मास्क आ रहे हैं, जैसे N95 में भी कुछ ऐसे पैटर्न्स के मास्क आ रहे हैं जिन्हें कि हम एयर टाइट पॉलीथीन बैग में, एयर टाइट हो जो, उसके अंदर अगर 6 and 7 आवर्स के लिए रख के उसे छोड़ देते हैं तो Okay. वो स्टाइल हो जाता है ना, तो Okay. वो अपन फिर रीयूज कर सकते हैं। वो मास्क भी, मतलब उस पैटर्न के मास्क भी मार्केट में अवेलेबल है अभी। फाइन फाइन, तो या तो हम उसको वॉश करें या फिर एयर टाइट पॉलीथिन बैग में रख दें। तो कपड़े के मास्क है, उन्हें तो डेली वॉश करके और यूज करना है, जैसा मैडम ने बताया, वार्म वाटर हो तो बहुत ही अच्छा है। और इस टाइप के अगर मास्क है, N95 में भी कुछ मास्क ऐसे आ रहे हैं जिन्हें अपन एयर टाइट पैकिंग कंटेनर हो या फिर पॉलिथीन जो आती है अपनी एयर टाइट, जिसमें एयर अंदर नहीं, वो उससे स्टाइल हो जाता है, वो फिर अपन रीयूज कर सकते हैं उसे। फाइन। और मैम ये हमने पहले डिस्कस किया था, पर एक क्वेश्चन है कि सब्जियां हम बाहर से लाते हैं, तो आपने कहा था कि उसको गर्म पानी में हमको रखना चाहिए, और हम नमक के पानी में भी रख सकते हैं या हल्दी में भी डाल के रख सकते हैं। जो नॉन ईटेबल थिंग्स आती है, हम कभी जैसे लेके आते हैं बाहर से कुछ पैकेट है, तो ये सब क्या धूप में रखना चाहिए, या इसको क्या 1-2 दिन कहीं ऊपर रख दें फिर बाद में यूज करें? कहीं जैसे कुछ हमने मंगाया है बाहर से सामान, तो इन सब केसेस में क्या करना चाहिए? और जो वेजिटेबल्स एंड ईटेबल आइटम्स भी हैं, पैक्ड फूड है, तो क्या उसको धूप में रखना चाहिए या उसको छोड़ दें 1 आध दिन फिर यूज करें? क्या उसके पीछे वो कैसे देखिए, करें? अगर COVID-19 अगर उस पे इन्फेक्टेड हो चुका हो तो 2.5 दिन तक, मतलब 2.5 days उसका प्लास्टिक के ऊपर सर्वाइवल रहता है। तो 2.5 days अपन एग्जैक्टली हुए कि नहीं हुए वो पता ही नहीं है कि एक दिन रखा है धूप में और बाद में यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट एडविजिबल। तो आपको ये करना है कि अगर आप उसको, पॉलीथीन अगर ऊपर से कवर है तो उसको डायरेक्ट वॉश ही कर ले सोप एंड वाटर से, पॉलीथीन को ही ऊपर के। और अगर नहीं है, अगर वो ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो सैनिटाइजर स्प्रे जो मैंने बताया वो आप कर सकते हो। नहीं तो आपको पूरा 2.5 दिन तक उसको बाहर रखना है, फिर आपको 2.5 दिन तक उसको हाथ नहीं लगाना है फॉर 2.5 days। तो ओके, अगर ये 2.5 3 days। चीजें हैं, या जैसे अगर कोई ऐसा पैकेट है कि जैसे फ्रोजन ग्रीन पीस है, तो उसको आप 2.5 दिन तक बाहर नहीं रख सकते क्योंकि फिर वो खराब हो जाएंगे बाहर। तो उसको आप डायरेक्टली वॉश कर लो, दैट इज मोस्ट मींस कन्वीनियंट वे। सैनिटाइज कर सकते हैं, सैनिटाइज करना भी इजी है क्यों? आप अभी जैसे आप पूछ रहे थे कि सैनिटाइजर स्प्रे, या हाँ स्प्रे वगैरह को अपन जैसे बाहर से अपन बच्चों के चॉकलेट्स के पैकेट या बिस्किट के पैकेट्स लेके आए हैं, तो हम उसे इजीली सैनिटाइज कर सकते हैं। सैनिटाइज करके 6 and 7 आवर्स अंदर ना करते हुए बाहर ही खुले एरिया में रखें, उसे दूर रखें बच्चों से। या अपन भी उसे सैनिटाइज करने के बाद टच ना करें बार बार, एक बार सैनिटाइज करके उसे वहीं छोड़ दें कुछ समय के लिए। उसके बाद वो पैकेट्स को ओपन करके और फिर अपन उस पैकेट्स को हटा भी सकते हैं कि ओपन करके अपनों ने हटा दिया उस पैकेट को। उससे ये रहेगा कि प्रिकॉशन सेफ्टी पॉइंट से अच्छा है वो एक। ओके, तो मेनली ये है कि 2.5 days का टाइम पीरियड है, नहीं अगर हम वॉश कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 2.5 days के लिए उसको अलग कर दें, उसके बाद ही उसको करें अगर ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है तो। और एक ये क्वेश्चन है कि मैं, एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये कॉलीफ्लावर और कैबेज इस टाइम पे क्या हमें वेजिटेबल यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसमें कुछ ये सही है या ऐसे ही व्हाट्सएप वाला फॉरवर्ड है? कॉलीफ्लावर और जो कैबेज है उसको अच्छे से, अगर आप गर्म पानी में हल्दी डाल के अच्छे से उबाल लो और धो लो,
तो इट्स ओके टू यूज देम। ओके ऐसा कुछ नहीं है कि उससे कुछ और एक्स्ट्रा फैलेगा, जितना बाकी सब्जियों से जाएगा उतना ही उससे भी जाएगा। तो आप जो प्रिकॉशंस अदरवाइज ले रहे हो वो अगर इसमें ले रहे हो तो कोई दिक्कत तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। फाइन फाइन। एंड मैम एट द एंड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इट्स ऑल रिलेटेड टू आवर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जैसा कि हमने कहा कि अभी 2.5 मंथ से दिस लॉकडाउन पीरियड है, बच्चे ही नहीं बड़े भी परेशान है, वी कुड नॉट गो आउट, बट अभी हमें तो एटलीस्ट एक आउटलेट मिला है, हम जॉब के लिए जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, पर बच्चे अंदर ही हैं। सो हाउ टू कीप देयर मूड अप, उनको यू नो, ताकि दे डोंट अंदर ही बैठ बैठ के कुछ वो नहीं सोचें या कुछ ऐसा नहीं, उनको हमें क्या करना चाहिए साइकोलॉजिकली, हाउ कैन वी हेल्प देम? सर साइकोलॉजी को अगर दिमाग में रखें तो नाउअडेज वी आर सेइंग विटनेसिंग सच अ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इन पर्सनालिटीज, फेमस पर्सनालिटीज आल्सो दे आर एंडिंग विद देयर लाइव्स एंड डिप्रेशन न्यूज एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसमें क्या हो रहा है कि मेन चीज एल्डर्स आर मींस वो भी थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा ट्रॉमेटिक फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वर्क एंड थोड़ा सा एकदम ये होने की वजह से। So at this point, we should know that children are getting exposed to worse and they need to be all psychologically positive. तो आपको उनके सामने positive रहना है, आपको उनको ये दिखाना है कि they are important. They need to know that life is important. They are important. उनको involve करना है आपके साथ, आपके हर चीज में. Even आप financial issue discuss कर रहे हो, even आप news discuss कर रहे हो, तो उनको आपको इन्वॉल्व करके लेना है अपने साथ। जैसे आज स्कूल ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया था कि बीच में एक डायरी मेंटेन करना था बच्चों को कि विथ यू शुड स्टे विथ योर पेरेंट एंड मेंटेन योर डायरी कि आपने क्या किया। तो दैट इज वेरी गुड थिंग कि आप हर चीज में इनको इन्वॉल्व करके ले रहे हैं, तो वो एक जरूरी चीज होती है। सेकेंड, दे शुड नॉट फील निग्लेक्टेड कि कभी वो बात कर रहे हैं तो आप बीच में उनको रोक के बोलो नहीं अभी तुम आप बच्चे हो या फिर इसमें ध्यान मत दो, या कोई मरने की न्यूज है या नेगेटिव न्यूज है, तो उनको पचाने का वो जो चीज है वो दिखाने का, वो चीज लाइफ में लेने का उनको सिखाना है। उनको सिखाना है हाउ टू मैनेज फेल्यूर। उनको ये नहीं सिखाना है कि दिस पर्टिकुलर टाइम यू नोट टू बी स्ट्रॉन्ग। ये हाँ आपको बुरा लगेगा लेकिन दिस विल चेंज। ये उनको एक एहसास दिलाना है कि आपको ये जो हमें ये एटमॉस्फेयर मिला है वो हमेशा रहने नहीं वाला है। उनको एक होपफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है ताकि वो क्या एक पॉजिटिविटी उनके अंदर एक डेवलप हो जाए। तो हाँ, तो दे शुड जस्ट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ। अभी कोविड से भी ज्यादा ये डिप्रेशन एंड ऑल दैट थिंग्स, दीज आर मेकिंग वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड। तो वो उसकी वजह से वो ये नहीं हो कि बिल्कुल एकदम सैड मूड में बैठे हैं या फिर कुछ करने का उनका मन नहीं हो रहा है। ये सब चीज मेनली हमें वी शुड बी विद देम, डिस्कस विद देम, और उनके साथ कुछ टाइम ज्यादा हमें स्पेंड करने की जरूरत है इस टाइम पे। करेक्ट, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अभी ये डाउट्स भी काफी आते हैं। तो मैं अभी सभी जो अभी हमारे साथ हैं, मोर देन 100 पीपल आर देयर। इस पर्टिकुलर सेशन के लिए हमें डॉक्टर कुकरेजा जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, इज द डायरेक्टर ऑफ यूरेका हॉस्पिटल्स, उन्होंने भी एक वीडियो मैसेज हमारे एक पेरेंट के थ्रू, उनको आई विल थैंक, डॉक्टर फराज खान जो आज आने वाले थे बट अगेन ही इज इन आईसीयू राइट नाउ, तो वो आ नहीं पाए, बट उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा के भेजा है। इट्स अ स्मॉल मैसेज ऑफ 4 मिनट्स जो हमारे लिए एंड मोस्टली हमारे बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू सी इट and then we will continue. So just give me a second, मैं आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर करूंगा, तो इट वुड बी मच बेटर। ये एक बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छा वीडियो है जो हमने डिस्कस किया, इसका आप इसको एक सारांश मान सकते हैं। सो दैट वुड बी बेटर। और 5 10 बाय 30 वाले
वो एक अपने कोलेजन की जो है खाना बड़ा सा ये ना तो कोलेजन की लगा होगा तो हमारे क्या वो आई होप आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। Yes. ठीक है भाई, Yes, yes. आप लोग हाइड्रोजन कर दीजिएगा। हाइड्रोजन नमस्कार। हाइड्रोजन की बात है। बस एक ये पूरा सामान हो और मैं एक शिशु रोग विशेषज्ञ। कठिन समय विकट एक जस्ट अ मिनट, मैं आई होप आप लोग अभी देख पा रहे होंगे। यस। ओके। मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुकरेजा और मैं एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। कठिन समय है, विकट परिस्थितियां हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस समय में आप और आपका पूरा परिवार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा हुआ है और आगे भी बचा हुआ ही रहेगा। आज का अपना विषय है कि किस तरह से हम खुद को और अपने बच्चों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा सकते हैं और इन विकट परिस्थितियों के अंदर किन आदतों का और कौन सी चीजें बच्चे के खान पान में अपन ध्यान दें जिससे बच्चे के अंदर उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और उसके अंदर कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना कम हो जाए। तो पहले भाग के बारे में अपन बात करते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से हम अपने बच्चों को किस तरीके से बचा सकते हैं। हम लोग जानते ही हैं कि कोरोना वायरस हमारे बच्चे के शरीर में या तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन से आ सकता है या फिर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से आ सकता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन का अर्थ होता है कि अगर हमारा बच्चा किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के संपर्क में आता है जिसके शरीर के अंदर कोरोना वायरस है, तो जब वह व्यक्ति खांसेगा, छींकेगा या बोलेगा तो ये वायरस हमारे बच्चे के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और बच्चे को संक्रमित कर सकता है। ये होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसको रोकने के 4 तरीके। सबसे महत्वपूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक दूरी। जहां तक हो सके हम अपने बच्चे को अपने घर से बाहर न निकालें। दूसरा, किसी अत्यंत आवश्यक कार्य से हमको बच्चे को घर से बाहर लेकर भी जाना पड़ता है तो उसको सही तरीके से मास्क पहना कर ले जाए। तीसरा, अगर हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति को सर्दी खांसी या बुखार है तो उससे किसी भी स्थिति में हम अपने बच्चे को दूर रखें। और चौथा, जिसे कफ हाइजीन कहा जाता है कि अगर कोई छींकता है, खांसता है तो अपने नाक और मुंह को टिश्यू या रुमाल से ढकें या फिर अपने स्लीव्स के अंदर छींकें या खांसें। इन 4 तरीकों से हम अपने बच्चे को डायरेक्ट ट्रांसमिशन से बचा सकते हैं। अगला, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से बचाना। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का अर्थ होता है कि हमारा बच्चा किसी व्यक्ति के डायरेक्ट सीधे संपर्क में नहीं आया है, परंतु उसने किसी ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे आर्टिकल, ऐसे सरफेस को टच किया जहां पर ऑलरेडी कोरोना वायरस है, वहां पर हाथ लगाया और वो हाथ अपने नाक या मुंह पर लेकर गया। इसको इनडायरेक्ट या फोमाइट मीडिएटेड ट्रांसमिशन कहा जाता है। इसको रोकने के लिए क्या करना है? सबसे पहला, अपने बच्चे को बार बार शिक्षित करें कि जब तक जरूरी न हो नाक, मुंह, आंख और चेहरे को हाथ न लगाएं। दूसरा, अगर किसी ऐसे संक्रमित जगह पर बच्चे का हाथ गए या फिर बच्चा घर से बाहर गया है, घर के अंदर वापस आता है या खाना खाता है, उसके पहले अच्छे से हाथ धोना है। हाथ धोने के लिए किसी डिटर्जेंट युक्त साबुन का उपयोग करें और कम से कम 30 से 40 सेकंड तक हाथ धोएं। हाथ धोने का तरीका होता है, पहले हाथों को अच्छे से गीला किया, साबुन लगाया, फोम बनाया, उसके बाद सबसे पहले हाथों के अगले वाले भाग को साफ करना है, फिर पीछे वाले भाग को, उसके बाद उंगलियों के बीच में, उसके बाद दोनों हाथों के नाखूनों को, अंगूठों को और आखिरी में कलाइयों को, उसके बाद अच्छे से धोना है। अगर किसी स्थिति में साबुन का उपयोग न कर पाए तो अच्छे सैनिटाइजर जिसमें 60% से ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा होती है उसका उपयोग करने से भी हम इस वायरस के इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। तो ये हुआ हमारे विषय का पहला भाग। दूसरे भाग पर आते हैं, कौन सी ऐसी अच्छी आदतें हम लोग बच्चे में डालें, कौन सी खाने पीने की आदतें डालें ताकि बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इसके कारण बच्चे में कोरोना वायरस का संक्रमण न हो। आज के समय में क्या हुआ है, मोबाइल है, टीवी है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, बच्चों का सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो रखा है। इसलिए पहली चीज जो हमको करना चाहिए, गिव देम अ प्रेडिक्टेबल टाइम शेड्यूल और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल।
मोबाइल टीवी का उपयोग कम करें, रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। बॉडी के नेचुरल क्लॉक को फॉलो करने से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दूसरा, सुबह जल्दी उठाएं, उनको अच्छी फ्रेश एयर में ले जाएं, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए थोड़ी देर उनको धूप दिखाएं, जैसा भी संभव अपने घर की छत पर या गैलरी में, ताकि सामाजिक दूरी का भी पालन हो सके। इससे बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तीसरा, अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड फैमिली सर्विसेज, स्कूल गोइंग बच्चों में 40 मिनट से 1 घंटे तक विग्रस एक्सरसाइज रेगुलर कराने से उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। विग्रस एक्सरसाइज सीढ़ी चढ़ा के भी कराया जा सकता है, स्कीपिंग करा के भी कराया जा सकता है, एक हाइड एंड सीक का खेल खेल के, पकड़म पार्टी का खेल खेल के भी उनको अपन एक तरह की एक्सरसाइज अपन दे सकते हैं। चौथा, जहाँ तक हो सके मोबाइल टीवी का उपयोग कम करें, इससे बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। पांचवा, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, खाना साथ में खाइए, उनको स्टोरी सुनाइए, उनको अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ाइए, रामायण सुनाइए, महाभारत सुनाइए। बच्चों को स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये क्वालिटी टाइम उन बॉडी के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा, जिससे बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ये सब अध्ययनों में सिद्ध हो चुका है। और सबसे आखिरी, खाने पीने का ध्यान रखें। ऐसी चीज़ें फिलहाल खरीदें जिनको थोड़ा लंबे समय तक स्टोर किया जा सके। अगर संभव हो तो बच्चे को फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स वगैरह दें। ऐसी चीज़ें जो कि बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, वो चाहे घरेलू हो या ऐसी चीज़ें जिसमें आयरन होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, जिंक होता है, वो अपन ज़्यादा से ज़्यादा दें। फ्लूइड, लिक्विड इंटेक बढ़ा कर रखें। जितना ज़्यादा फ्लूइड बच्चे लेंगे उतना बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। इन सब चीज़ों का अपन ध्यान रखें। और अंत में ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि बच्चों के मन में कोरोना वायरस से डर पैदा न करें। रिसेंटली मैंने देखा 3 साल की बच्ची मेरे से कह रही थी कि मुझे कोरोना से डर लगता है। 30 साल के लोगों को तो कोरोना समझ में नहीं आया, 3 साल के बच्चों को कहाँ से समझ में आया, क्योंकि हम दिन में टीवी देखते हैं, कोरोना के बारे में बातें करते हैं। तो बच्चों को ये समझें कि डरने की ज़रूरत नहीं है, एक सकारात्मक अप्रोच ज़रूरी है। उन्हें सही जानकारी प्रदान करें, जिससे बच्चे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचे हुए रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आई थिंक ये हमने प्रजक्ता मैम और मारूफा मैम और हम सब जो पिछले 1 घंटे से डिस्कस कर रहे थे, तो सर ने, डॉक्टर ने काफ़ी अच्छे से उसको एक समराइज करके एक वीडियो दिया है, तो उसके लिए वी शुड थैंक हिम। एंड आई गेस ये सेशन जो हमने ऑर्गेनाइज किया था, इट वुड हैव बीन वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, सभी पेरेंट्स के लिए, सभी जो भी जुड़े हैं। एंड उसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर एंड ऑल आवर टीचर्स, जिन्होंने नो दे ट्राइड, लवीना मैम ने इनको कॉल किया, ललवानी मैम और सब, हम सब वी आर ऑल ट्राइंग। सो इट वाज गुड कि ये सेशन हो पाया। एंड स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर प्रजक्ता एंड डॉक्टर मारूफा कि यू वर विद अस हियर टुडे एंड आप लोगों ने हमारे डाउट्स क्लियर करे, बहुत सारे बेसिक डाउट्स हमको समझाए। आई एम होपफुल कि ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव 1 आवर रहा होगा सभी के लिए जिन्होंने ज्वाइन किया। सो एज पार्ट ऑफ द स्कूल हम लोग we are always trying to do something, no, and that is helpful and meaningful and beneficial for our parents and most importantly our children. So अभी जो कि time is different, हम लोग स्कूल नहीं चल रहा है, आ नहीं रहे हैं, सो ऑनलाइन हम लोग ऐसे सेशंस जितने भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विल कीप डूइंग। एंड it will be very helpful that if you keep giving us your constructive feedbacks, so that would also be good. So आज का सेशन I guess we can end here. And once again thank you Dr. Prajakta, thank you Dr. Marufa and all of you parents जो आप you have given this 1 hour to us. Thank you all for joining us, and hopefully we'll meet again through any such session in the future. So thank you all once again for joining. Thank you.